So hello दोस्तों, how are you? I hope you are doing well. Okay, so in we have started a C programming session. Okay, so in that first video you have already discussed about what is C programming. Okay, if you are beginner, so for definition purpose you can note down the definition. Okay, कि C is a high level language and C is a procedural programming language. What does mean procedural programming and high level? So already I have explained and also explained that how C program execute, okay, in the back end. Okay, so suppose you have written a source code and then you are executing, you are running the source code. So what happened in the background? Okay, so we have already discussed that there are four phase. Okay, that once we are executing C code. Okay, so first phase in pre-processing, and second phase compiling, second phase assembling. Compiler will convert the source code to assembly code, and the assembler will convert the assembly code into executable code, means the object code. Okay, and then object code we used by the linker. Okay, and will execute that, and you will get the output. Okay, so let's start with example. Okay, so here we have opened the console. Okay, you can see here. Okay, so here is the C editor. Okay, you can say. And if you want to download, so you can download Turbo C editor. Okay, and then you can use that Turbo C editor. Otherwise, I am using online editor. Okay, so you can find online editor and you can use. So here, suppose here what in has what is has is the pre-processor. Okay, that indicate in first page what will happen. Source code, whatever the code is used, that will pre-processed by preprocessor. Okay, before compiling. Okay, that because there are four page. Okay, so preprocessor will be pre-processed the source file. Okay, source file, what is the source file? That is whatever the code we have written, that is the source file. Okay, and in a source file what contains? Source code, means I am explaining कि सोर्स फाइल क्या होता है, जहाँ पे हम कोड लिखेंगे और कोड को सेव करेंगे उसे हम सोर्स फाइल बोलते हैं। और सोर्स फाइल क्या करता है? कंटेन सोर्स कोड, मीन्स जो कोड हम लिखेंगे उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। तो सोर्स कोड कंटेन कौन करता है? सोर्स फाइल। ओके, एंड सोर्स फाइल को प्रोसेस कौन करेगा? प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर कैसे? हैज is indicating that is a that file should be pre-processed. Okay, so here has include what is the include? The SCINCLUDE include stdio studio dot h. Okay, सी प्रोग्रामिंग क्या है? केस सेंसिटिव है। ठीक है, अगर आप एस टी डी कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल एस, सो वी विल गेट एरर। सो वी विल एक्सप्लेन, फर्स्ट एक्सप्लेन द लेट मी एक्सप्लेन about the phases. Okay, how many phase that will execute the C program. Okay, कितना फेज में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स फाइल क्या होता है, प्री प्रोसेसर क्या होता है, यूजिंग एग्जांपल. ओके, सो वी हैव दैट इज द हेडर. ओके, this is the header, header, header. Okay, and hash is the header, and hash is the preprocessor, preprocessor. ठीक है, and there is a main. Okay, so that we use void main, the void main, because we don't want to return anything. Okay, अगर आपने void की जगह इंटीजर या जो भी आपने ले लिया तो उसको रिटर्न कराना पड़ेगा। ठीक है, एंड हियर printf hello सी प्रोग्रामर, PRAMM. ठीक है, सी प्रोग्रामर. तो हियर हमने क्या किया? हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच.
this whole statement called header. Okay, header means whatever the suppose here printf we have used, but how to understand compiler or executor what is printf. So printf that is defined in the studio.h. Okay, that okay means we have used studio means they are authorizing okay you can use printf and you can understand that. Okay, so here we have used header. In header studio.h contains printf. We will एक दिन मैं ओपन करके पूरा दिखाऊंगा स्टूडियो कैसे डिफाइंड हुआ है प्रोग्राम में, सी कोड कैसे यूज करता है सी इंटरनली सी कंट्रोलर. ओके, एंड ये मेन मीन्स मेन इंडिकेट करता है कि प्रोग्राम विल स्टार्ट हियर. ओके, वॉट एवर द कोड यू हैव रिटन अबव that will only indicating that can be used inside the code. Okay, but C controller always start from main to execute the program. Okay, सो ये पूरा कोड क्या हो गया, पूरा कोड सोर्स कोड बोलते हैं इसको, द होल कोड कॉल्ड सोर्स कोड. ओके, एंड द सोर्स कोड विल बी सेव्ड बाय अ फाइल. ओके, सो व्हाट इज द फाइल है मेन. यू कैन सपोज दैट आप मान सकते हैं कि मेन इज द फाइल. ओके, सो मेन डॉट सी मीन्स ये क्या हो गया आपका पूरा सोर्स कोड हो गया, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और ये मेन डॉट सी फाइल में सेव हो रहा है. तो ये क्या हो गया सोर्स फाइल. ओके, सोर्स फाइल का आपका इंटरनली ये सेव्ड होगा ना, डॉट आई एक्सटेंशन होता है ये डॉट सी सी प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं किसी कोड है ये. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सोर्स कोड हो गया, सोर्स कोड सेव होगा तो दैट इज सोर्स फाइल. ओके, एंड प्री प्रोसेसर क्या करेगा, प्री प्रोसेस्ड करेगा दैट. ओके, आपने अभी हम यहाँ पे जैसे इसको हमने रन किया, इस रन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ओके ओके एरर आ गया ना, कह रहा है कि आप वार्निंग कैरेक्टर. ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने यूज किया सिंगल कैरेक्टर. ओके हियर, तो ये सी प्रोग्राम नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है सिंगल कैरेक्टर. अब देन हम रन करते हैं इसको. सो यू कैन सी हियर ना कि हेलो सी प्रोग्रामर आउटपुट प्रिंटफ हेलो सी प्रोग्रामर. ओके, तो ये आउटपुट. अब क्या हुआ, हमने अगर इसको कमेंट कर दिया तो ये प्रिंटफ को समझ नहीं पाएगा कि प्रिंटफ क्या है, क्योंकि प्रिंटफ डिफाइंड है हेडर में, विच हेडर स्टूडियो में, बट हमने तो यूज नहीं किया हेडर. तो ये प्रिंट जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कंपाइल होगा तो कहेगा यार हेड ये प्रिंटफ क्या है, समझ नहीं पाएगा. देखो एरर क्या आती है, लेट्स सी. You can see now here, warning, implicit declaration of function printf, printf hello, not include studio.h or provide declaration of printf. मीन्स कह रहा है या तो आप studio.h यूज करिए सो हम अंडरस्टैंड करें, अदरवाइज आप इसका डिक्लेरेशन और डिफिनीशन मीन्स आपने प्रोवाइड अ डिक्लेरेशन, आप इसका डिक्लेरेशन बताइए कि एग्जैक्टली है क्या. ठीक है, आपने डायरेक्ट यूज कर लिया बट डिक्लेरेशन है ही नहीं फंक्शन का. ओके, मीन्स आप यूज कर रहे हैं, डिफिनीशन यूज कर रहा है बट डिक्लेरेशन तो है नहीं. ठीक है, तो इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा. ठीक है, ये कह रहा है या तो आप डिक्लेयर करिए प्रिंटफ, हमको समझाइए कि प्रिंटफ क्या है, अदरवाइज आप इंक्लूड स्टैंडर्ड आप यूज करिए सो दैट हम अंडरस्टैंड करें, हम समझ सकें कि है क्या. ठीक है, वार्निंग ये सेम वही दे रहा है. ठीक है, नोट प्रिंटफ एंड प्रोवाइड डिक्लेरेशन हेलो सी प्रोग्राम. ठीक है, तो ये पूरा बता रहा है कि ये एरर आ गया ना आपको. ठीक है, तो आप इसको तो ये समझ सकते हैं कि हेडर क्या होता है, व्हाट इज द हेडर. ओके, एंड देन हम क्या करेंगे, रन करेंगे तो ये समझ लिया ना हेडर के अंदर प्रिंटफ डिफाइंड है. ठीक है, और प्री प्रोसेस कर लिया. ओके, दैट इज द हेडर दैट वी कैन यूज इन दैट प्रोग्राम. सो ये हेलो सी प्रोग्राम. तो पहला फेज क्या होगा, प्री प्रोसेस्ड हुआ, हैज इंक्लूड, हैज क्या करेगा, इसको प्री प्रोसेस्ड करेगा फाइल, एंड देन हु इज द रिस्पॉन्सिबल to preprocessed, has is indicating that is a preprocessor will preprocess the file, and then the preprocessed file compiler will use and compiler convert into assembly code. Okay, and then assembly code, then assembly file will be used by the assembler. Okay, and then assembler will be responsible to generate the executable code, and then the linker will use that executable code and give output. So that all thing is happening internally. So we are not able to see that. Na?
Okay, we once OneLane compiler, SQL एडिटर, ये आपका ऑनलाइन टूल्स दिया हुआ है ना, C++ कोड, C# रन करने के लिए, PHP JS। ओके, तो ये हम यूज कर सकते हैं, हम सी का ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने समझा, आपको समझ में आया कि सोर्स फाइल क्या होता है। सोर्स फाइल कंटेंट करता है सोर्स कोड। दिस सोर्स कोड क्या होगा, प्री प्रोसेस होगा, देन प्री प्रोसेस फाइल को कंपाइलर यूज करेगा, कंपाइलर कन्वर्ट करेगा असेंबली कोड में। ठीक है, एंड असेंबली कोड में जनरेट किया, असेंबली कोड फाइल यूज करेगा असेंबलर, दिस असेंबली कोड को यूज करेगा असेंबलर, एंड देन असेंबलर क्या करेगा, जनरेट करेगा ऑब्जेक्ट कोड, मीन्स 01 कोड, मशीन कोड एंड एग्जीक्यूटेबल कोड, एंड देन ये ऑब्जेक्ट कोड यूज बाय द लिंकर एंड दैट एग्जीक्यूट एंड द आउटपुट विल बी given here. Okay, so there are, first we need to define header. Okay, whatever the function we are using inside standard function, so related the standard function, we need to declare or include, you need to include on the header. Okay, and you can so you can get output. Okay, so आपको फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, हेडर को इंक्लूड करना पड़ेगा। अभी हम स्कैनफ यूज करेंगे ना, तो स्कैनफ को कहेगा कि अब क्या है स्कैनफ, आपको आप एक्शन स्कैनफ फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, व्हाट डज मीन। ओके, या तो आप कोनियो डॉट एच इंक्लूड करिए, या तो फिर आप हमको डिक्लेयर करके समझाइए, इसका कंट्रोलर कहेगा डिक्लेयर करके समझाइए कि है क्या ये। ठीक है, तो आपके स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड के लिए आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा हेडर को, अदरवाइज आपको डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो सो दैट कंट्रोलर कैन अंडरस्टैंड। सो दैट इज द बेसिक प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड हाउ टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ओके, द प्री प्रोसेस्ड, फर्स्ट फेज में क्या होगा, प्री प्रोसेस्ड होगा। सेकंड फेज में क्या होगा, कंपाइलर यूज करेगा, क्या यूज करेगा, प्री प्रोसेस्ड फाइल यूज करेगा, एंड देन असेंबलर क्या करेगा, कंपाइल फाइल जो होगी उसे असेंबली कोड जो जनरेट करेगा कंपाइलर, वो असेंबलर यूज करेगा, और उसको क्या यूज करके ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा, एंड देन ऑब्जेक्ट कोड यूज करेगा कौन, ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड कौन यूज करेगा, लिंकर, लिंकर इसे एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसेस। कितने फेज होते हैं, 4 फेज। आप ये ध्यान रखिए, अगर हमने यहाँ पे कैपिटल एस दे दिया तो कहेगा हम नहीं समझ पा रहे क्या है भाई, क्योंकि ये कहेगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, हेडर इज द प्री प्रोसेसर। ओके, इज द प्री प्रोसेसर कंपाइलेशन टर्मिनेटेड, क्यों, क्योंकि आपने कैपिटल एस यूज कर लिया। कैपिटल एस यूज करने से क्या होगा, वो समझ नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे उसका मीनिंग अलग होगा, कैपिटल लेटर में लिखेंगे उसका मीनिंग अलग होगा। तो इंटरनली ये स्मॉल लेटर यूज करके डिफाइन किया गया, तो आपको स्मॉल लेटर यूज करना पड़ेगा। तो केस क्या है, केस सॉरी सी क्या है, सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, केस सी प्रोग्रामिंग क्या है, एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आप थोड़ा ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। सी प्रोग्राम, प्रोग्राम केस सेंसिटिव है, CSENSITIV, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, आपको बताया कि अगर LANGUAG, क्या हो गया, टाइपिंग गलत है। सी प्रोग्राम केस सेंसिटिव है, हाई लेवल लैंग्वेज है, HIGH हाई लेवल LANGUAG लैंग्वेज है। इसके बाद प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहते हैं, PROCEDURAL, प्रोसीजरल LANGUAG लैंग्वेज है। ठीक है, सी क्या है, सी के सेंसिटिव हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। कितना फेज में एग्जीक्यूट होता है, प्री प्रोसेस्ड फाइल जनरेट हुआ 4 फेज में। देयर आर देयर आर 4 फेज। ओके, फर्स्ट क्या होगा, प्री प्रोसेस्ड होगा फर्स्ट फेज में,
प्री प्रोसेस्ड मीन्स ये होगा, ये आप ध्यान कर सकते हैं। प्री प्रोसेस्ड होगा, प्री प्रोसेसर द्वारा प्री प्रोसेस्ड होगा दैट फाइल, एंड दैट फाइल विल बी generated .i extension, and then pre-processed file will be used by compiler will generate the assembly code, and extension will be .s. Okay, and that assembly code used by assembler to generate object code, and that object code used by the linker. Okay, so you can see here. So if you do you have any questions, any doubts, so you can add in the comment box. Okay, एंड थोड़ा समझाने का तरीका लंबा हो सकता है, लेकिन आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, एंड आप ट्राई करें अंडरस्टैंड करने के लिए, और आप एक छोटा सा प्रोग्राम जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे नोट डाउन करते जाइए और सेव करते जाइए। आप 100% आपको सी प्रोग्रामिंग समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट करिए, सो हम और क्लियर करने की कोशिश करेंगे इन कमिंग वीडियोज। ओके, एंड दैट्स ऑल, बिकॉज वीडियो तो लंबा होता जाता है। ठीक है, थैंक यू, बाय।